Okay, so continuing again from where we left, coming to the world page. So, world page, we are every day getting updates about this only. Gaza Israel war, UN halts the aid to Gaza amid the communications blackout also. So, violation of human rights जो है बहुत बड़े स्केल पे देखने को मिल रहा है. People are not having basically safe places to reside and healthcare services नहीं है. They're not having food, they're not having potable water. And then again, जो communication blackout है with the UN from on the part of the Gaza, on the part of the Hamas, that has created more problem. So it has led to basically paralysis kind of situation in the coordination of essential supplies also. So here in Egypt, we seeing कि Egypt में initially जो border crossing थी that was blocked, but after it was internationally taken up, so that was again opened. So India has also sent humanitarian aid to the Gaza Strip because we are against any kind of terrorist act, but we are supporting the civilian population which is based in Gaza. So UN Agency for the Palestinian Refugees, which is known as the UNRWA, it was unable to bring in its aid convoy on Friday. And this is again because of the communication blackout. So even this has led to the refugee crisis in the region as well. So refugee inflow, how basically Egypt is going to deal with this thing, whether it will be basically allowing people to enter Egypt or not is going to be a concern. So it is also barred food, water, and other supplies except for the trickle of aid from Egypt that aid workers say falls far short of what is actually needed. So here, what role and how basically neighboring countries are going to help in dealing with this civilian crisis, specifically the the civilians, that is very important. let's set up something. Okay. हाँ ऊपर कर रहे हैं एक बार Personality. स्क्रॉल अप मानसी हाँ बुकर प्राइज विनिंग ब्रिटिश ऑथर A.S. वाइट बियात डाइड एट 87 कौन है आंचल ही इज अ आप पोएट कुछ और नॉवेलिस्ट दोनों है ये, तो उनके तो फेमस क्यों है ये जो आपने बोला लेने के लिए इसको पर्सनैलिटी में मतलब पता होने चाहिए ना कोई अलग पर्सनैलिटीज, इसलिए मैंने इसको लेने के लिए बोला कि नाम तो पता होना चाहिए ताकि हम गैस कर सके ये किस चीज से रिलेटेड होंगी। जैसे कि अब ये नॉवेलिस्ट है, इनकी शॉर्ट स्टोरीज भी है, तो इस रिगार्डिंग आई हैव टू टेक अप। So he's famous for और the इन्होंने children's book. द चिल्ड्रन बुक ठीक है So earthquake prone region, high seismic zone. We are seeing southern Philippines में there's a strong earthquake. Of late हमने नेपाल में देखे हैं, there have been many earthquakes of late. So strong magnitude of 6.7 earthquake shook the southern Philippines. So Philippines के around, Anchal, can you name few islands which are located around Philippines? Anyone else? Shivank? इंडोनेशिया मलेशिया नहीं, आइलैंड कंट्रीज नहीं, ठीक है, हाँ ये तो आपने ठीक बोला है, ये फिलीपींस के अराउंड, बट आइलैंड की मैं बात कर रही हूँ, इम्पोर्टेंट आइलैंड जो, ओके, साउथ चाइना सी में कौन से इम्पोर्टेंट आइलैंड है? मानसी द इम्पोर्टेंट आइलैंड्स Yes, हाँ बोल party islands we have. हाँ स्कारबोरो And आइलैंड हाँ, स्कार्बरो शॉल होगा। मिनिकॉय हाँ, मिनिकॉय भी है। मिनिकॉय सो ये हमने कल बात करी थी, आरबीआई टाइटन्स द रूल रिगार्डिंग लेंडिंग ऑफ पर्सनल लोन्स बाय द बैंक, सो उसकी वजह से बैंक स्टॉक्स हैव फॉलन। सो और डिटेल वी हैव टेकन दिस अप, व्हाई डज मानसी मिनिकॉय इंडिया में बस पार्टली और स्कारबोरो है बस मिनिकॉय इज देयर इन इंडिया लक्षद्वीप। में वो तो लक्षद्वीप में हाँ and partial island we have in South China Sea. So हाँ पार्सल ठीक है। so Achal has given Barkoi Island. So yes, that is also in that. So technical textiles में we aim to
exported by basically $40 billion. $40 billion technical textiles. So, Ashik, can you tell me, मतलब, why are we calling them to be technical in nature? Technical textiles क्यों बोलते हैं? One is normal textile, which we use it as a Hmm. conventional method, हाँ, and everything no है. technological intervention is there. Yes, some form of technological intervention is there, but the textile which is used, it is not for technological purposes. जैसे स्पोर्ट्स यूटिलिटी में जो आप पहनते हो, गियर पहनते हो, वो भी टेक्निकल पार्ट होता है. सेकंड वुड बी द यूजेस इन द इलेक्ट्रॉनिक्स Air या safety, fire फिर. safety में. हाँ, तो हर एक चीज में जब टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में यूज किया जाएगा अगर टेक्सटाइल को, तो टेक्निकल हाँ, मतलब कि फायर टेक्सटाइल सेफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो हाँ, बायोसेफ्टी. वो हाँ रेजिलेंस है टू दी नॉट गेटिंग बर्न सो इजीली. सो इसलिए मतलब वो टेक्निकलिटी जो एलिमेंट्स रहते हैं, जो नेचर ऑफ फाइबर भी यूज किया जाता है, जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज बेसिकली डिस्टिंक्ट हेयर. सो वी आर हैविंग And द the prominent examples of technical textiles is that DM shoes, which is used in the Indian Army, having the GPS mechanism. Then we have the gloves, which we use in the industrial production, particularly the steel and the iron ore industries. Then yes. we have the fire extinguisher suit. So all are the examples of technical textile. And famous example is Michael Phelps, who have worn the swimsuit, which was banned Yes, from the Olympics. The yes. swimsuit एकदम इतना सही था कि उससे 0.1 सेकंड जल्दी होता था बाकी लोग से. इतना वो टेक्निकल टेक्सटाइल था सर. तो उसके एग्जांपल दे सकते हैं. ठीक है. करुणा said healthcare sector, automobiles, yes. Yes, it's used. डॉक्टर्स जो ग्लव्स पहनते हैं सब टेक्निकल टेक्सटाइल पार्ट है. पीपी जो हम लोग बात कर रहे थे कोविड के समय में, वो भी टेक्निकल टेक्सटाइल पार्ट है. Yeah, and even also I think we can categorize the N95 mask in the technical textile only. हाँ, yes. Okay, Ashik, we can take up Indian Express newspaper. Okay, Mansi. Now starting with the Indian Express newspaper, we have already taken up. PM has said new challenges emerging, condemned civilian death in Israel and Hamas conflict. So basically, India has not directly said that it has condemned the Israel action, or it has just adopted the policy of in a basic strategic autonomy policy, in which he said that condemning of the civilian death in Israel-Hamas conflict. सबके लिए कंडेम करते हैं, चाहे वो हमास ने अटैक किया हो चाहे इजराइल ने अटैक किया. तो ये जो यूज ऑफ वर्ड्स होता है वो इम्पोर्टेंट होता है. नीड टू स्पीक इन वन वॉइस फॉर ग्रेटर गुड, ही टेल्स टू ग्लोबल साउथ. तो विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, प्रेरणा? ओके, करुणा. Yes, Brazil, India, Pakistan, China, Indonesia, all of these are part of Global South. ग्लोबल साउथ ही क्यों है वो, मतलब ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का डिस्टिंक्शन क्यों कहा जाता है, तो ग्लोबल साउथ क्यों है? तो अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ अमेरिकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज एक्सेट्रा. I think यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए एक ये दिस इज वन वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ, जिससे इनको इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिल पाए एंड न्यू चैलेंजेस को सॉल्व कर पाए in future. Yes, because the multilateral institution in the body currently is dominated by the global north, that is developed countries, EU and USA. इसलिए हमें मोर रिप्रेजेंटेशन चाहिए ग्लोबल साउथ में. तो क्या क्या मेजर्स लिया जा रहा है ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए? द फर्स्ट इज रिफॉर्म इन द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा, UNSC. Then second is voice in the media and even in the think tank circles. Third is leadership role of the China, India, and other countries such as Russia for the global south. And fourth is increasing the spirit of brotherhood and cooperation between global south and India, developing countries through trade and economic measures. ऐसे इंडिया एड देता है, मेडागास्कर को एड दिया, या फिर $4 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया नाइजीरिया में
श्रीलंका को भी एड दिया, तो एक पार्ट दिखाते हैं कि इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स द ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल। तो इसी का, तो आई थिंक यूज ऑफ AI for deepfake worrying. Deepfake already we have talked about, and our Prime Minister says that we have to educate and caution the people regarding the inherent dangers of AI. So we are saying that we have to caution and educate people, but people have already said, according to Stanford Institute, that 71% of people is in positive direction with respect to AI and its implication. तो आई थिंक यहाँ बात हो रहा है कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको कैसे कम किया जाए AI का। तो पेरिसले एक डिक्लेरेशन है जिसमें बात किया जाता है कि वी हैव टू रेगुलेट द AI। मैंने इतना बोला है, याद हो गया। High Court causes Haryana law on 75% quota in private job to resident। इसमें क्वेश्चन मेरा है कि जो इंदिरा सैनी जजमेंट था जिसमें 50% का एक स्लैब था, इट वाज बेस्ड ऑन द कास्ट और इट वाज बेस्ड ऑन रीजन? प्रवेश, you can. It was based on reason, Oshik. So again, I'm reiterating the similar fact that the Indira Sani case is not having any association with the private sector reservation. Private sector reservation is subject to the private association and its collaboration with the government agency. Indira Sani case ceiling, which is 50%, is already breached when we are having on the central level 60% reservation, the 10% of the EWS, and in some of the states, for an example, in the Tamil Nadu and the other southern states, we have even 65% reservation, especially in the NEET also. So the reservation limit, which is 50%, is already breached, but on the central level, we have 60% today. So it is already done, but the private sector is having no association regarding it. So here reservation That is is socially and educationally backward class, right? Not caste. yes. Mansi, it is basically showing the Maharashtrian policy, which is visualized in the Haryana's government move, and it is saying that we will give 75% quota to individuals of the Haryana. So that ये is तो on the basis of region हो गया, discriminate नहीं कर सकते, that is why it is yes. unconstitutional. वो पॉइंट भी ठीक है, बट वहां पे जो इंदिरा सानी जजमेंट हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के ऊपर है, कास्ट के ऊपर नहीं है। Yes. हाँ, socially and educationally backward classes. And here High Court has said that law passed by the Haryana government that have provided 75% reservation in private jobs to resident of the state, it is ultra war to the part 3 of the Constitution of India. That is, जो आप बिजनेस करना है, हाँ क्या बोले प्रभु? Fundamental rights. I mean, you cannot हाँ, discriminate. आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ना, आप प्राइवेट सेक्टर है, उनका अधिकार है, वो किसी को भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट है गवर्नमेंट सेक्टर से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, Rosneft, India's Russia oil suppliers 3 are 2 in the files। उसी का बात हो रहा, साइप्रस का बात हो रहा था। US ने sanction किया है इन companies को when we are having the oil diplomacy with the Russia and we are importing oil from Russia. So the US has sanctioned the Rosneft company, which is supplier of the oil to India. So India import की अगर हम बात करें तो India import करता है 4.57 million barrels per day, of which roughly 30% comes from the 4 Russian companies, among which the Rosneft is one of them. So now we have to see that how the Indian government is going to deal with this sanctioning policy of US and to maintain the cordial ties with both the countries on the similar patterns. Yes. And first of all, the Rosneft is big Russian corporation regarding the oil. Lukov, Sturgenev, Fatas, ऐसे कुछ नाम है, और Gazprom। तो ये चारों
बेसिकली यहाँ पे तो ये बस है इसमें कि प्रीलिम्स में ये आपको जान, हाँ रशिया यूक्रेन वॉर यूएस ने सैंक्शंस लगाए, हमने उसके बाद रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया, बट उसके बाद अगेन जो इंडिया और यूएस के बीच में टाइज हैं वो इम्पैक्ट नहीं हुए हैं डिस्पाइट इंपोर्टिंग सो मच ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, बिकॉज वो डिस्काउंटेड ऑयल प्राइस था, तो इसलिए इंडिया ने इम्पोर्ट किया। बट अभी जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि इंडियन मेंबर इस जो रोजनेफ्ट कंपनी है जिसके ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाए, इंडियन मेंबर एक मतलब इंडिया को बोर्ड मेंबर एक मतलब वहां पे अपॉइंट हुआ है, तो उसकी वजह से क्या और मतलब इंडिया यूएस के बीच में क्या उसकी वजह से टेंशन हो सकती है, नहीं हो सकती, बिकॉज इंडिया की क्लोज वी कैन से कि कोऑपरेशन या क्लोजनेस को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इंडिया यूएस के बीच में जो टेंशन है वो नहीं बढ़ी, क्योंकि इंडिया यूएस ऑलरेडी सपोर्ट्स इंडिया अचीविंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और इंडिया जो है उनका जो रिलेशनशिप रशिया से वो बहुत डिफरेंट है ऑन वेरियस एस्पेक्ट, जैसे डिफेंस, एनर्जी, और कोलैबोरेशन ऑन द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, चाहे आप यूएनएससी में है, वीटो पावर के हिसाब से देखा जाए। और मतलब इंडिया तो जब तक ये सैंक्शंस को वॉयलेट नहीं करेगा तब तक रिलेशंस पे इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इवन क्रूड ऑयल और इम्पोर्ट सैंक्शन जो होता है, सैंक्शन डॉलर जो का मानसी होता है ज्यादा। ना, हाँ, वो भी तब वॉयलेट करेगा ना जब सैंक्शन इम्पैक्ट करेगा रशिया को, हाँ। और सैंक्शन लगाया जाएगा। सैंक्शन तो लगाया जाता है, लेकिन स्विफ्ट में ऑलरेडी उन लोग है नहीं, उन लोग को बैन कर दिया गया, तो वो हम्म। ऑलरेडी दूसरे तरीके से घुस रहे, जैसे साइप्रस के थ्रू अकाउंट उन्होंने बनाया, और हाँ। वहां से इंडिया के कोई बिजनेसमैन होंगे उनके थ्रू ऑयल खरीद रहा होगा। तो बेसिकली बाईपासिंग ऑफ सैंक्शन का तरीका होता है जो हर एक कंट्री और बाकी सब करता है, बट डिपेंड करते हैं कि वो कंट्री का पावरफुल कितना है। पावरफुल ज्यादा है तो आप बच सैंक्शन जाएंगे, के कहाँ बाद powerful कम है। सैंक्शंस के हाँ बाद रशिया का ट्रेड इंक्रीज वही मतलब इम्पैक्ट ऐसा कुछ देखा नहीं। हाँ हाँ। Now coming to the previous article regarding to the AI, our Prime Minister has said that just like warning sign on the cigarette, I had told the Chat GPT representative that उसमें भी ऐसा लिखा रहना चाहिए कि दिस इज अ डीप फेक, ऐसा टाइप सब टाइटल, ताकि आप इंजॉय करें जैसा भी है, लेकिन इट इज दे सेड दैट दिस इज दे आर वरीड टू, दे हैव क्रिएटेड दिस बट हाउ विल दिस स्टॉप। तो प्राइम मिनिस्टर अवेयर है रिगार्डिंग दिस, और वो बाकी लोग को भी बता रहे हैं, हमारे जो बाकी सिटीजन के, कि कैसे डीप फेक से बाकी सब वीडियो बनाया जा सकता है जो सिमिलर है, और एक तरह से नेसेसरी फॉर वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो दो एरिया हो गया कि एक डीप फेक नीचे में लिखा आना चाहिए, और दूसरा की वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, कोई एक अलग से प्लेटफॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पीआईबी, फैक्ट चेक साइट होता है फॉर फैक्ट चेकिंग द न्यूज साइट, और एनी अदर व्हाट्सएप फॉरवर्ड एक्सेट्रा। तो वैसे ही टाइप डीप फेक के भी अलग से साइट होना चाहिए जो आप फैक्ट चेक कर सकते हैं डीप फेक को, कि वो झूठ है कि सच है। प्रवेश, डीआरआई जो है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इस किसके अंडर आते हैं ये? I think Kaushik, it comes under the Ministry of Revenue. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, Yeah. ये हमने ले लिया था। फिर जो फ्रेश कंप्लेंट अगेंस्ट द चीफ सेक्रेटरी, तो ये एक इशू क्या है, कोई एक्सप्लेन कर दो शॉर्ट में। तो यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जो लैंड प्रोक्योर किया गया था उसमें बेसिकली जो प्राइस पे उसको बाय किया गया उस प्राइस को फर्स्टली इन्फ्लेट करके दिखाया गया, समवेयर 300 करोड़ दिखाया गया, बट वो इतने का लैंड था नहीं। एंड ये जो आईएलबीएस या मतलब जो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हैं और उनका जो बेटा है एक प्राइवेट फर्म में ही वर्क्स, सो उसी प्राइवेट फर्म ने वो बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस थे उसी कंपनी के साथ हुए। So this is basically coming out to be as a conflict of interest kind of situation now. यस, और ये दिखाता है कि चीफ सेक्रेटरी के ऊपर ये एलिगेशन लगा है, और ये हायर एथिकल स्टैंडर्ड उनको प्रमोट करना चाहिए, जो ये ठीक नहीं। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको एथिक्स अभी के तो स्टडी। मतलब हमें वेट करना चाहिए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन का पूरा नहीं, रिजल्ट नहीं आया। एलिगेशन है, हाँ हाँ। एलिगेशन है, वेट करना चाहिए, तो बात कर सकते हैं, लेकिन अ, ये ठीक दर्शाता नहीं वो बात। ग्रेटर नोएडा बॉडी क्रैक्स द whip ऑन द स्ट्राइकिंग सैनिटेशन वर्कर। तो बेसिकली उन्होंने स्ट्राइक किया था सैनिटेशन वर्कर, और
they demanded the salary to be increased to around 20,000. At present the sanitation worker are given 17,000 rupees. तो उन्होंने बोला कि भाई 20,000 कर दो। तो अथॉरिटी ने बोला कि ठीक है कर दूंगा कुछ समय के बाद। लेकिन फिर दिवाली जब आया तब फिर उन्हें मिला नहीं, तो उन्होंने फिर स्ट्राइक किया। हाँ, बेसिकली तो प्रोविजन भी है, बेसिकली यहाँ पे जो प्रोविजन है कि हर 2 साल में 5% सैलरी इंक्रीज होनी हाँ, चाहिए, तो वो भी नहीं मिला है। एंड दे हैव द राइट टू स्ट्राइक, सो दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, so which is again not violating law and राइट टू स्ट्राइक नहीं है मानसी, order. राइट Right टू to प्रोटेस्ट। protest है, हाँ। अदर डिमांड जो वर्कर से रहता है हमेशा सैनिटेशन से रिलेटेड, जो सोच सकते हैं इसके ऊपर में क्या हो सकता है। सेफ्टी इक्विपमेंट होगा, फुल बॉडी चेकअप थ्राइस, क्योंकि आप इनहेल करते हो वो हार्मफुल गैसेस और आप रहते हो जहाँ पर डिजीज होने का खतरा होता है, तो थ्राइस होना चाहिए बॉडी, फुल बॉडी चेकअप। तो एक इंटरेस्टिंग नया पॉइंट है। एंड सेकंड इज डेडिकेटेड स्पेस टू स्टोर फूड एंड चेंज क्लॉथ, सेपरेट बाथरूम होना चाहिए। तो Indian Army is celebrating the 243 Corps of Engineer Day. So Indian Army has gained strategic edge as a result of modernization of engineering equipment, मॉड्यूलर ब्रीजेस हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन वो भी। तो बेसिकली इंडियन आर्मी बात करते हैं गृह ग्रीन बिल्डिंग रिफॉर्म या फिर क्लीन सोलार, मतलब एनर्जी सस्टेनेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ सिविलियन सेक्टर में नहीं है, आर्मी सेक्टर में भी है। वहां पे कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल बनाए लॉन्ग टर्म के लिए, एंड मैं वहां ही कहूँगा बात वापस ज्यादा है। ज्यादा। तो शॉर्ट स्पैन ब्रिज, मॉड्यूलर ब्रिज, यूनिवर्सल असॉल्ट ट्रैक वे, एलईडाइजेशन, हाँ वही एलईडी यूज करना। और उसके बाद ड्रोन बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, माइक्रो बेस्ड सैटेलाइट रिसीवर्स देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि किस तरीके से जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की तरफ इंडिया बढ़ रहा है, और हमारी जो डिफेंस स्ट्रेटजीज हैं वो कहीं ना कहीं अपग्रेड हो रही है, जिससे हमें एक डेटरेंस भी देने को मिल रही है टू आर एनिमी नेबर्स एंड टू मेंटेन द रीजनल सुप्रीमेसी इन द सब कॉन्टिनेंट। ये इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण टीम रिहर्सेस ओवर द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद ऑन इन फ्राइडे, 2 days ahead of वर्ल्ड कप फाइनल बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें मैं क्वेश्चन है, कोई भी आंसर दे सकते हैं कि जो सूर्य किरण को रिहर्स किया जा रहा है, इतना पॉम्प एंड शो किया जा रहा है, मतलब ये डिफेंस जो बेसिकली यूज होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी में किया जाता है टू डिफेंड आवर कंट्री, लेकिन ये क्यों दिखा हुआ है ऐसा इतना ज्यादा। तो बेसिकली ये वर्ल्ड कप फाइनल है वैसे, परवेश तो आप इसमें बोलने दिए ना। ठीक अरे है। आप ही बोल रहे हैं, बाकी कोई बोलो। बाकी कोई, पहले आप सचिन बोलो। आंचल थी, बोलो आप। इतने बड़े लेवल पे अगर कोई चीज होती है तो डिफेंस आईएएफ ने पहले भी एयर शोज किए हैं, तो उसी के लाइन में हम इसको भी देख सकते हैं। मतलब क्यों 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 पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब ये तो ठीक है इतने बड़े शो हो रहे हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट जो होता है ना 2-3 लाइन में समराइज अगर करना है इसको, तो क्या बोल सकते हैं। आई एम नॉट अवेयर। ये एडवांसमेंट और डेवलपमेंट शोकेस कर रहा है ना, डेट्स वाई इस पे ठीक है, स्पेंड एक भी किया एक जा रहा है। हाँ देखिए, स्पेसिफिक स्पेसिफिक वर्ड दिया। अक्षय, प्रवेश से बता दो। हाँ मानसी जा बता। बोलो मानसी, ये मेरे को नहीं पता, बता दो। बताओ अभिषेक, तुम ही बताओ। सॉफ्ट पावर और क्या, कि सॉफ्ट पावर दिखाने के लिए हम लोग बड़ा हो गए हैं। यूएस ऐसे ही करता है, B-52 बॉम्बर लेके आता है ऊपर में, या फिर अपना जो नया क्राफ्ट होता है F-35 और F-22 रैप्टर, उसको भी यूज करता है बेसबॉल गेम में। तो हम लोग भी करेंगे, हम लोग बड़ा हो गए, कंट्री बिग कंट्री है, धीरे धीरे ग्लोबल स्टेज में आ रहे हैं, तो एक सॉफ्ट पावर और एक प्रोजेक्शन ऑफ पावर होता है वो करने के दुनिया को। जैसे 2008 के समय में चाइना ने किया था, वैसे ही
इंडिया का एक स्मॉल स्टेप है। 2036 में इंडिया का लास्ट स्टेप रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ये, उसमें हो सकता है और कॉम्पेंट शो किया जाए, तो So एक everyone's सॉफ्ट answer is in similar regard, and Oshik has put the flower of it. So एक वर्ड पूछे थे बस, बाकी तो hmm. एजुकेशन मिनिस्टर प्लेस टू ब्रिज डिजिटल डिवाइड फॉर स्टूडेंट, कैसे कर सकते हैं इसको दूर, कोई बताओ। डिजिटल डिवाइड फॉर स्टूडेंट लिखा है। हाँ, सबसे पहले ओशिक ये है कि आप डिजिटल डिवाइड को अगर दूर करना चाहते हैं तो आपको खाली इस पे फोकस नहीं करना पड़ेगा कि हर किसी को हम स्कूल में ही बुलाएं। जहाँ पर स्कूल्स नहीं पहुंच पा रहे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आंध्र प्रदेश जैसे, उड़ीसा जैसे स्टेट्स में जहाँ पीवीटीजी ज्यादा है या रिमोट एरिया ज्यादा है, वहाँ पे मिनी ट्रक्स जाते हैं और उन पर एलसीडी लगी होती है और वो वहाँ पर क्लास चलती रहती है अंडर द दिशा प्लेटफॉर्म, डीडी, दूरदर्शन। इस तरीके से बहुत अहम भूमिकाएं निभाई जा रही है ताकि डिजिटल डिवाइड कम हो। दूसरा, जो हमारे क्लासरूम्स हैं वो डिजिटल थोड़े बनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी पेडागोगी में भी चेंज आए और डिजिटल सेंसिटिविटी आए लोगों के अंदर। दूसरा, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी पे फोकस किया जा रहा है, और टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि जो जो डिजिटल लर्निंग है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं आज के टाइम पे कि किस तरीके से जो हायर डिग्री एंड प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो भी आप आज घर बैठकर डिजिटल डिग्री ले सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ स्टेप्स हैं जो डिजिटल डिवाइड को कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम ऑलरेडी स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लाइक एकलव्य मॉडल स्कूल्स हो गए या फिर भी सी पीएम श्री स्कूल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो विद इन दैट ओनली वी आर इंश्योरिंग कि जो डिजिटली हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट स्कूल्स में भी स्मार्ट बोर्ड्स हो गया, सो उसके थ्रू स्पेसिफिकली ट्राइबल एरियाज में वी कैन ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। ट्रू। तो यहाँ प्रवेश ने और मानसी ने 3 एरियाज को यूज किया। पहला कि जो ग्रास रूट लेवल में स्टूडेंट्स के लिए, सेकंड है कि जो आप यूनिवर्सिटी लेवल में आपका डिग्री मिलता है ऑनलाइन मिलना चाहिए, और थर्ड में स्टूडेंट्स में भी जो डिवीजन है बिटवीन द ट्राइबल नॉन ट्राइबल पीवीटीजी, उसको भी बोलना चाहिए। डिजिटल डिवाइड बेसिकली सबके लिए, हर एक के लिए एक एग्जैक्ट इनपुट होना चाहिए। तो एनईपी जो है उसमें ये किया जाएगा, कम किया जाएगा डिजिटल डिवाइड। अब मोशिक, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि इंडिया के अंदर सैफ्रोनाइज से लोग इतना चिढ़ते क्यों हैं? क्योंकि सैफ्रनाइज मतलब होता है कि आप एक कोई रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं और इट इज अगेंस्ट द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री। When नहीं you're नहीं नहीं नहीं, आप making it to कैसे be बोल a सकते हैं? political symbol and you're associating it only with one particular religion and उसको डिपिक्ट किया जाएगा नेशनल लेवल पे, तो that is why it is creating a problem। आप उसको कैसे सिंबलाइज कर रहे हो उस कलर को? और तो दूसरा मैं बताऊंगा, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, दूसरा एस्पेक्ट है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, अपीजमेंट ऑफ द सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि आपको डराना है बार बार ताकि सत्ता में रहे। ये भी एक दूसरा है नहीं, पहलू है। आप डराते किस फैक्टर पे हैं? क्या हुआ किस किस बिहाफ पे आप डराते हैं फिर? कि मेजोरिटेरियन वर्सेस माइनॉरिटीज, एग्जैक्टली, ये तो दोनों दिस आई वांटेड टू नो। सो दोनों सैफ्रोनाइज, हाँ मतलब बताया, दोनों इसका एस्पेक्ट एक है। यस। तो इसका देखना, ओडिशा विथहोल्ड्स डिसीजन ऑन सेल ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल्स। तो कल ही हमने बात किया था कि उड़ीसा ने इम्प्लीमेंट किया है, और फिर आज ही फिर हुआ कि दे हैव विथहोल्ड द डिसीजन टू ऑफ सेल ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल। तो ये सिर्फ उड़ीसा में नहीं है, ये छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड में भी है। सीएनटी एक्ट बोलते हैं इसको, छोटा नागपुर छोटा नागपुर टी से याद नहीं आ रहा, देखना होगा। तो वो एक्ट है, बेसिकली इट वाज पास्ड आफ्टर द बिरसा मुंडा एजिटेशन इन 1899। तो 1908 में पास हुआ था सीएनटी। इट वाज द सेम एक्ट कि दे प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ ट्राइबल लैंड टू द नॉन ट्राइबल्स। इट इज लेकिन छोटा तभी नागपुर प्रेगनेंसी एक्ट। उसी देखा गया जो हाँ, बोलो सची। जो ये रूल्स हैं ट्राइबल के लिए, फिर शेड्यूल कास्ट के लिए, कि वो अपनी लैंड को किसी जनरल को नहीं दे सकते। तो ये बेसिकली देखने जनरल में नहीं, नॉन ट्राइबल, लगता है एससी को भी नहीं मिल सकता। कि
फेवर में, क्या ये रियल में फेवर करते हैं उन्हें? हम्म। नहीं, ऐसे आपका राजस्थान क्वेश्चन में क्या है रूल्स हैं, आपका? सुप्रीम की एससी की जो लैंड है वो नॉन एससी को नहीं जा सकती। तो बेसिकली मेरे क्वेश्चन ये था कि जो रूल्स हैं, क्या ये रियल में उन्हें हेल्प करते हैं, या फिर बल्कि उनको जो मार्केट है जहाँ पे वो दे सकते हैं उसको बल्कि और कम कर देते हैं, उनकी प्राइस हाँ, को कम हो आई जाता है एग्री क्योंकि उनके विथ पास योर स्टेटमेंट बायर ही नहीं है जो उनसे खरीद ले। सचिन। हाँ, मार्केट तो आई कम एग्री विथ हो योर गई उनकी। स्टेटमेंट तो कि बेसिकली जो उनके लैंड है फायदे फॉर के लिए एग्जांपल, नुकसान क्यों कर रहे हैं? हाँ ये सचिन, ऐसे बहुत एकर्स में लैंड होता है जिनका कीमत हो सकता था आज करोड़ में हो जाए, लेकिन ये सीएनटी लगने के बाद या फिर आपके जो राजस्थान में भी है वहां पर भी इसका 10 लाख के रहेगा सिर्फ, फॉर एग्जांपल। तो 90 लाख जो प्रॉफिट हो सकता था और वो आउट ऑफ वो बिजनेस कर सकते ये थे, वो नहीं हो सकता। तो एक तरह से घाटा भी है लॉन्ग टर्म। लेकिन लैंड तभी भी बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं ये कि लैंड नहीं डिसीजन बेचा जा वापस रहा लिया गया है, है। तो उनके फेवर में तो प्राइसिंग ज्यादा ये मैकेनिज्म है कि डिफरेंट है। सीलिंग हटा दी जाए। हटाया नहीं जा सकता ना, वो पॉलिटिकल ब्लंडर हो जाएगा बाकी लोग के लिए, जब तक सहमति नहीं होगा बाकी सब एसटी और एससी के बीच में, हम नहीं हट सकता। तो ये what has happened so far? 40 men have trapped in the morning. Rescuers spent 2 days using excavators to remove the debris। और हमने बात किया था हिंदू न्यूज़पेपर में कि जब मूव मूव कर रहे स्कैवेटर से, तो उसका वाइब्रेशन से बाकी और डेब्रिस गिर सकता है और ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो द मोर डेब्रिस दे मूव, द मोर फॉल्स इन इट्स प्लेस। वही बात है। मशीन ब्रॉट इन टू ड्रिल थ्रू द मशीन यूजिंग रोटेटिंग ड्रिल बिट, ये भी यूज किया गया, ये भी काम नहीं कर रहा है अभी। फिर क्या किया कि एक पाइप यूज कर रहा है, ऐसे पाइप दिखाया यहाँ पर, उसके अंदर में खाना वाना सब पहुंचाया जा रहा है, खाना पानी से लेकर हर चीज, 40 जो जुड़े हुए, विटामिन का गोली हो गया या फिर मिनरल्स हो गया, बाकी से पहुंचाया जाएगा अभी तक यहीं पर। 11 लाख चिल्ड्रन इन इंडिया मिस्ड फर्स्ट मिजल्स शॉट इन 2022। तो मिजल्स के बारे में कोई अगर बता दो सर्च करके गूगल का, तो मैं पढ़ता हूँ उसको। According to the World Health Organization, out of 11 lakh have missed the measles vaccine, and it was under the ICDS. Global vaccination measles dropped to lowest to 2008. And India is among the 37 countries that witnessed large disruptive outbreaks, reporting around 41,000 measles cases in 2022। दो वैक्सीन होता है इसका, प्रोटेक्ट 97% प्रोटेक्शन देता है लाइफ में। So measles basically एक इट viral इज infection इट होता इज है। पार्ट ऑफ द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। हाँ बोलिए। मीजल्स एक वायरल इन्फेक्शन है, इसको हम वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट भी कर सकते हैं। एंड इट कैन लाइक इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज जो एयर के थ्रू, वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। एंड थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग आल्सो इट कैन गेट स्प्रेड। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी इट कैन स्प्रेड, एंड आल्सो इट कैन गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू द फीटस। तो measles इज वायरस बेसिकली, हाँ, वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन, प्रिवेंटेबल है विद द वैक्सीन, सो प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और ये कम्युनिकेबल है। हाँ, खास कम्युनिकेबल डिजीज है। वेक्टर नहीं है बेसिकली। हाँ, वेक्टर नहीं है, यस। ये ले लेते कोट। अ टॉवेल इज अबाउट द मोस्ट मैसिव यूजफुल थिंग एन इंटरस्टेलर हिचहाइकर कैन हैव। बताओ इसको, इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका? एनीवन? नहीं, औषध आप बताओ। इसमें मेरा इंटरप्रिटेशन टफ है ये वाला। मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि आप कहीं भी चल जाओ, चाहे आप यूनिवर्स में चल जाओ, चाहे आप कहीं भी चल जाओ, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे खाना हो गया, ऐसे वैसे टॉवेल मोस्ट मैसिवली यूजफुल थिंग। आपके पास स्पेस क्राफ्ट है, आपके पास सब चीज़ है, हाईटेक टेक्नोलॉजी है, लेकिन टॉवेल ज़रूरत है आपको शरीर पोंछने के लिए और नॉर्मल कुछ बाकी सब काम करने के लिए। आई थिंक ये मेरे को लगता है कि एक बेसिक एस्पेक्ट होगा।
तो इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आप कितना इंडिया में डेवलप हो जाए, लेकिन जो बेसिक एस्पेक्ट होता है विद थिंकिंग रिगार्डिंग द फूड सिक्योरिटी, वो इम्पोर्टेंट है। बेसिक एस्पेक्ट है जैसे मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन खत्म करना, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। न्यूट्रिशन एलिमेंट, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, वो इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक मेरा इंटरप्रिटेशन ये है, जबकि बाकी ये है कि इसको ऐड आप करना है। अगर कोई चैलेंज है, सपोज वाटर से रिलेटेड ही चैलेंज है, पोर्टेबल वाटर एक्सेस अवेलेबल नहीं है फार ऑफ एरियाज में, सो जो बेसिक चीजों के, जो छोटी चीजों की इम्पोर्टेंस है ना, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर उस पे इम्फेसाइज ज्यादा किया जाए तो उसकी वजह से वी कैन ऑल्सो गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग की एडवांस हम और क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इज ऑल्सो वेरी, लाइक इट मैटर्स अ लॉट, इट कैन क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। यस। हाँ, इसमें एक इंटरप्रिटेशन और भी ले सकते हैं कि किस तरीके से जो आम चीजें होती हैं, मुझे थोड़ा ऊपर करना आप स्लाइड। तो किस तरीके से कुछ आम चीजें होती हैं जिनका यूज बहुत होता है, लेकिन वो इंटरस्टेलर होती है, कहने का मतलब वो बिखरी होती है और वो अनगिनत होती हैं, और आप उनकी कदर नहीं समझते हैं। तो बेसिकली वो यूज तो होती हैं, लेकिन उनकी कदर हम खो देते हैं। उसमें हम देखते हैं, अगर मैं एग्जांपल डालूं, सबसे पहले हम पेरेंटहुड पे आते हैं। तो पेरेंटहुड एक ऐसी चीज है जो मैसिवली यूज होती है आपकी कंडीशनिंग में, आपकी पेडागोगी में, आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में, और वो इंटरस्टेलर होती है, मतलब वो हर जगह आपको दिखती है, लेकिन उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। दैट इज अ मैसिवली यूज थिंग। फिर हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो एजुकेशन है, किस तरीके से हमारे पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशन होते हैं, किस तरीके से वो एक वो हमारी एक नेसेसिटी होती है, उनके बिना हम उनसे हम बच नहीं सकते हैं, उनमें हमें डलना ही पड़ता है, और हम उन्हें मैसिवली यूज करते हैं। कोई आपको यूज करता है, आप किसी को यूज करते हो, और वो बेसिकली एक नेसेसिटी होती है एक लाइफ की, एक जीवन की। तो मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल एक चीज को लेकर चलूंगा, रादर देन कि फैक्चुअल हम जाएं कि हाँ मैं हाँ, क्लाइमेट चेंज और ये सब। कैसे बोल तो सकते हो। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इकोनॉमिक एग्जाम्पल भी ऐड करूंगी। वी टॉक अबाउट कि वुमेन कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी कैलकुलेशन में इंक्लूड होना चाहिए। तो वो भी यही एस्पेक्ट हो गया जब प्रवेश बोल रहा था कि हम थिंग्स आर स्कैटर्ड, उनको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो दिस वुड बी वन मोर एग्जाम्पल। ओके, देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ठीक, आंचल बोलती है अब्जॉर्बर फॉर विशेष टू टैकल पोल्यूशन रोल इज ऑल्सो लाइक टॉवेल एंड हाउ इट इज सिग्निफिकेंट। आंचल आप उसको एक्सप्लेन कर देना, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है चलिए। जैसे तो इंडस्ट्रीज में एब्जॉर्बर। होता है। मैं बोल रही हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे कि एब्जॉर्बर्स होते हैं या फिर रिफर्बिशर्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, तो उनका मेन एम तो यही होता है ना कि पोल्यूशन को थोड़ा सा मतलब डिक्रीज किया जाए, फिर रिड्यूस किया जाए। तो उसके ब्याह पे मैं ये वाला पॉइंट रेज करने की कि उसी तरीके से होता है कि जैसे कि हम बोलते हैं ना डर्ट को साफ करने के लिए, तो वो भी हमारे क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट करेगा। सो यहाँ पे एक एक्सपेक्ट मेरे साइड से ये है। ठीक है, तो सेकंड नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं कि एजुकेशन एंड पोल्यूशन। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सुबह सुबह उठना, पोल्यूशन के बारे में स्पीच देना, ऐसे लिखना, बात करना, इससे पोल्यूशन थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ ओपन स्पोर्ट्स डे जिसके दिन कैंसिल कर देना उसको, या फिर आप मॉर्निंग असेंबली में स्पीच देना, इससे पोल्यूशन खत्म नहीं होगा, और भी कुछ चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए। तो क्या एक्स्ट्रा चाहिए? तो बात करें दिल्ली पोल्यूशन के बारे में, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही चिल्ला रहे हैं बार बार कि भाई डॉक्टर बोल रहे कैंसर होगा, लंग कैंसर होगा, आप देखो ब्रोंकाइटिस होगा, लेकिन बाकी कोई समझने के लिए रेडी नहीं। और व्हाट अबाउट द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स का भी रोल होता है कि आप कैसे, आप घर से ही आप बिहेवियर चेंज लाए स्टूडेंट्स में भी और अपने लाइफ में भी। लाइफस्टाइल मिशन बात करते हैं कि आप कम यूसेज करें, आप कार पूलिंग करें, रादर देन एक ही गाड़ी में एक आदमी जा रहा है तो आप एक गाड़ी में चार लोग यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, तभी जाके चेंज आ सकता है। तो ओवरऑल आर्टिकल का ये कहना है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे इसको करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक चीज ये रियलाइज करनी होगी कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज से जो हमारा